Hello friends, welcome to Local Marks Doctors channel. और फ्रेंड्स टुडे वी केम टू टच थेरेपी इन ग्रीन पार्क. और फ्रेंड्स आज हम ग्रीन पार्क में आए हुए हैं डॉक्टर सुम्बुल के पास. शी इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स एंड लेट मी टेल यू इट इज़ ए वन ऑफ द बिगेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक इन ऑल ओवर साउथ दिल्ली एंड ग्रीन पार्क. तो फ्रेंड्स पहले भी हमने विजिट किया था मैम के पास एंड वी कवर्ड सम लाइव सेशंस एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. वी गोट वेरी गुड रिव्यूज़ एज वेल, वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग दोज वीडियोज़. तो फ्रेंड्स आज मेरी मैम से बात करते हैं what kind of therapy is going on, so we'll cover it and give you some brief introductions. Hi, she is Dr. Harinder and ये एक कंडीशन होती है फुट में मॉर्टन्स न्यूरोमा, उसको लेके परेशान थे. तो 2 बार स्टेरॉइड इंजेक्शंस इन्होंने लिए थे, है ना मैम? और उसके बाद काफ़ी रिलीफ नहीं था, मतलब उनको हील में बहुत ज़्यादा पेन था. एंड जैसे आप जानते हैं ओटी में बहुत घंटे खड़े होना पड़ता है, तो फुट ये थोड़ा लिम्प करके चल रही थी. तो she got suggested by somebody to come and meet me, so I worked on her and thankfully she was better after first session. उसके बाद से I observed a few other things in her body, जैसे सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट भी है क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत देर तक झुककर खड़े होते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते. तो आई एम ट्राइंग टू अलाइन हर नेक मसल्स एंड बैक मसल्स एंड देन आई पुट हर ऑन सम गुड रिहैब एक्सरसाइजेस, ताकि जो मसल्स सो जाती हैं, जिनका कम इस्तेमाल होता है, वो सो जाती हैं ब्रेन में, उनकी मेमोरी स्मज हो जाती है. तो वो मसल्स दोबारा वेकअप हो जाएं, अपना काम सही से करें, बॉडी अलाइन हो जाए एंड शी बी एबल टू डिलीवर much better in terms of work for all of us. So that's my work, that's my input. Both session. So from leg I have actually started working on neck and back also. Leg is better. We have yet to cover another 30-40% in the leg. जैसे पहले लेटती थी तो लेटने में भी हील टच होने से पेन होता था, अब वो नहीं है, वो टेंडरनेस नहीं है, छूने से पेन नहीं है. लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी होती हैं तो पेन होता है, तो उनको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है. तो मेरे हिसाब से जो उनका बैक का पूरा फिश है वो खिंचा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे बेंड करके, और बीइंग डॉक्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडीज़, तो आगे झुक कर बहुत पढ़ाई करी होगी, तो वो सब अपने लिए टाइम नहीं हुआ होगा. So I'm now making her revive and making her do all those exercises which she had missed on in life earlier, and basically trying to bring her muscles and joints back in balance, make them more stable. I came to meet her first time. I was not able to stand at all. I work in OT, so I used to sit, and if I had to stand for some work for even 5 minutes, it was unbearable pain, and I had Morton's neuroma because of some issue with foot, or incidentally I don't know how it started, but then I took steroid injection, ultrasound guided in that. After that 50% relief was there, but after that it was stagnant, and I was not able to move my finger, second, third and fourth toe. Then I took the second injection, but it was like not worth it, so I was really in trouble. Then one of my colleagues, Dr. Gautam, he suggested me regarding her. And then I came here, and after the first session only I was able to walk at least, because when I came to her I was limping, and gradually it improved, and there was so much of tenderness that even like while lying down my heel used to pain, but right now I'm comfortable. So this is my 4th session, and almost 60 to 70% relief is there. So that's great friends, you can see like this is only 4th session and ma'am already got like around 70% relief. So let's cover this live session. I'm walking nicely now, without any limp. So let's cover this live session so you can have the some in detailed information as well. Right, yeah. Now I'm releasing her traps and all her neck muscles, बिकॉज इनका पॉस्चर थोड़ा फॉरवर्ड नेक पॉस्चर हो गया था, उसकी वजह से हेडेक्स भी आते हैं, आर्म में पेन आता है, सुबह उठने में मिड बैक में स्टिफनेस होती है. सो वो सब रिलीज़ कर रहे हैं. थोड़ी नेक की भी जो डीप फ्लेक्सर्स हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं एज जेंटली एज आई कैन. सो समटाइम्स आई यूज़ लिम्फ टू ड्रेन इट so that she doesn't feel much pain, because if I be on the muscles, like if I start releasing them by any which means, even by needling or something, it will be more painful. So I try and make it as gentle as I can. इसके बाद ये करेक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगी तो ये चेंज जो अब आ रहा है वो फिक्स हो जाएगा, है ना. और बॉडी
सबकॉन्शियसली वो पोजीशन ले लेगी जो उसको लेना है. मतलब आप अभी अगर इनको मैं बोलूँ आप चिन पीछे रखिए तो वो कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो बार बार वो वापस आगे आ जाएगी. लेकिन अनलेस आई लाइक करेक्टेड लाइक अलाइनमेंट वाइज एंड मेक हर डू दोज एक्सरसाइजेस, वो वापस अलाइनमेंट में नहीं आएगा, उनके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं आएगा. तो दिस इज माई बेट ऑन द नेक. Sometimes I feel that जब यहाँ ट्रैक्शन मिलता है ना तो जी. I feel more comfortable. हाँ और बिल्कुल. relief मिलता है. या एब्सोल्युटली. ट्रैक्शन में आपके जॉइंट्स डिकम्प्रेस हो जाते हैं ना सारे, तो नर्व्स भी रिलीज हो जाती हैं. बिकॉज रिसर्च वाइज दिस हैड मोर बेनिफिट्स. सो वी आर प्लानिंग टू गेट अ ट्रैक्शन मशीन ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा सा इट विल सेव आवर हैंड वर्क ऑनेस्टली, बट इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स बेनिफिटिंग दिस, It is much better. yeah. Because I can sense it with the hands where my, I mean, if I'm on an artery or nerve or any muscle, so I can maneuver around. This is tender. Yeah, see. So I myself have suffered this when I delivered my first child. So I almost had thoracic outlet syndrome. Oh, I had that. है ना? और I remember. Not in delivery, like around few years back, around 7-8 years back, I had this numbness here. Yeah. So it was almost like thoracic outlet. Yeah, I, and it must be that only. Yeah. I went for this course of it's called kinetic control, where they tell you how to activate the muscles, the small stabilizers. The course was on thoracic area. I ended up becoming the subject for the matter, because I had two ribs, jutting forwards on one side. Yeah, accessory rib. Yeah, they assessed me, and one rib was like inside the other one, like that. A double. Yeah. So they released me, and then I almost had this thing, and then the guy was from Australia and he taped me, and I just thought he's God sent. He's come to cure me. And then I realized how much pain I was in. I was just moving around. So now I really understand when I'm treating others for the neck issue, that how much they must be feeling. So I'm releasing this muscle. This helps in the rotation and side flexion, and together they help in nodding. So अक्सर इसमें बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को उल्टी या चक्कर भी आते हैं, और वो सोचते हैं कि मतलब काफ़ी सारे टेस्ट भी करा लेते हैं, पर मामला सिर्फ यही होता है. तो इसलिए या एंड इफ आई प्रेस यू हियर समटाइम्स द pain goes to the head. I can feel it. See, so headaches are also, a lot of headaches which are diagnosed as migraines are mostly cervicogenic, say around 90%. तो ये एरिया बहुत क्रूशल है, बिकॉज ये कंड्यूट है बिटवीन द हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बहुत सारी नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स. एक वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व निकलती है, वो आपके इट अफेक्ट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट ऑल्सो. सो विद एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स उसमें काफ़ी उसका रोल होता है. तो इफ़ आई सेट दिस एरिया राइट, आई प्रिटी मच कॉन्कर अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स लाइक हम बोलते हैं एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं, है ना, वेगल, और एक सोमा से साइकी भी अफेक्ट हो सकती है. इट्स वाइस वर्सा ना. जब साइकी आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, तो बॉडी ठीक होने से भी तो साइकी इफेक्ट होगी ना. जैसे कहते हैं हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहता है, तो कभी कभी वी एक्ट स्मार्ट. हाँ, इसको करेक्ट कर दिया तो थोड़ा ब्रेन को क्यों मिलेगा. सो वट एवर वर्क्स ना फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट इज द मोटिव. Yeah. Okay, so I'm working on her leg now. So as you see, her quadriceps, her front of the thigh muscles are also tight, ताकि जो ये हिप है ना, ये फ्रीली मूव करे इन एंड आउट. और फिर वो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो ठीक से पास हो जहाँ से जाना है, एंड शुड नॉट डिस्टर्ब हर जॉइंट्स इन ऑरी फैशन, ताकि वो वेयर आउट ना हो, एक्सेसिव उसके ऊपर स्ट्रेन ना आए, स्टफ लाइक दैट. On the front of her, sorry. This will be agonizing. इसमें बहुत पेन होता है, लेकिन दिस इज़ टू इंश्योर कि ये वॉक पेन फ्री करें. ठीक है ना. तो अभी मैं फेशिया पे हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी बोन को रगड़ रही हूँ, पर पेन ऐसे ही है इसमें. अब कुछ नीडल चुभाने जैसा पेन हो रहा है आपको? हाँ, शार्प पेन है. तो आई एम ऑन हर फेशिया. सो
So this is better now. I can sense it under my elbow, and now I'm sort of moving a lymph. So you slightly raise your back a little, thoda sa. Okay, now rest it down on my fingers and relax. So press it down on my fingers from your hip. Press it down, press. Relax and ease. फिर से press करिए. Relax and breathe. So, I'm trying to give her more freedom around the whole of her right side. वो वाला ज़्यादा stiff था, है ना? जी, I can sense it under my elbow with the crepitus under my arm. Yeah. Is it going towards your ankle or toes? This pain is, or it's just here? It's just here. Okay. And she had like immensely stiff calves. Matlab, that is one of the most stiff calves I've ever seen. So if that can respond, I'm hopeful with everything. Very stiff. I don't know, bakers and chefs have to stand for like 14 hours. हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोफेशन में बट बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए. वो लोग शेफ्स बहुत घंटे खड़े रहते हैं, तो उनके पैर बहुत बुरी तरह स्टिफ थे और nothing used to work. Then I work on her and at least that condition did not come back. मतलब वो overworked रहती हैं, पर वो जिस तरह से स्टिफ थे उतना स्टिफनेस नहीं आई दोबारा. तो कभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है वो काम हो सकता है तो सबके काम ठीक हो सकते हैं. डॉक्टर हरिंदर, और एक और टिप ये है कि जब भी कोई अगर आपको जैसे फ्रैक्चर होता है या कोई स्प्रेन होता है एक साइड पे, तो हमेशा दूसरी साइड को ज़रूर वर्क करते रहें, क्योंकि ब्रेन के लिए वो क्यों है. तो ये साइड और ये इनकी अफेक्टेड साइड है, इसमें आपको फ़र्क दिख रहा होगा. ये थोड़ी ज़्यादा स्टिफ और विजिबल है ना. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो द होल एंटायर चेन इज़ अफेक्टेड ऑन दिस साइड मोर. सो वी नीड टू bring it down. So बहुत पेन हो रहा है. Yeah, can you please breathe under my elbow? So take a deep breath and breathe out. So breathe in again and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. So breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Has already changed a bit. So It's almost jammed. yeah, no wonders for that because this region is filled up. So I'm trying to drain that. एंड शी इज़ अ राइट हैंड डोमिनेंट, तो सारे काम राइट हैंड से ही होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा यूज भी होता है. आप झुकते भी उसी साइड ज़्यादा हैं, तो वो भी एक रीज़न है इनके ये साइड को ज़्यादा अफेक्ट होने का. तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा वी कवर्ड वन लाइव सेशन. तो मैम एक छोटा सा ब्रीफ देंगे इसके रिगार्डिंग, और हम भी वीडियो फ्रेंड्स क्लोज कर रहे हैं. और आपसे भी रिक्वेस्ट है तो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए. मैम थोड़ा बताइए लाइव सेशन के बारे में.
वेल एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, और उनको फुट में कंडीशन थी, पर मैंने नोटिस करा फुट थोड़ा रिलीव हो गया कि उसके बाद वो पूरा बैक अफेक्टेड है उनका। अगर वो फ्रीडम नहीं मिली वहाँ पर तो फुट बार बार अफेक्ट होगा, तो सिर्फ लोकल एरिया में ट्रीट करके फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ थोड़ा रिलीफ देने के बाद कि वो खड़ी हो पाएँ, चल पाएँ आराम से, अब मैं वो शुरू से उसको अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो पीछे के उनके जितने मसल्स हैं एक साइड पे, राइट साइड पे, वो खिंचे हुए हैं, वो फेशियल जो वहाँ पर अटैचमेंट्स हैं वो बहुत टाइट हैं, जॉइंट्स भी उसकी वजह से मूव हुए हुए हैं। तो मैं उसको वापस धीरे धीरे आई एम ब्रिंगिंग इट बैक इनटू अलाइनमेंट। 4 सेशंस में भी काफ़ी चेंज आया है। पहले उनका पोस्चर काफ़ी फॉरवर्ड नेक था, अब पीछे हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता है, आपके काबू के बाहर हो जाता है जब बहुत दिन तक इम्बैलेंसेस रहते हैं। तो हम उसको धीरे धीरे वापस ला रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग द ब्रेन रीलर्न द मूवमेंट्स बाय मेकिंग हर डू करेक्टिव एक्सरसाइजेस for a set number of times for a set amount of time. So that's my approach. And as you all know, she's a doctor, so she's a very valuable asset for our society. तो अगर वो हेल्दी रहेंगी तो कितने लोग हेल्दी रहेंगे, तो ये मेरा और भी ज़्यादा उद्देश्य है, इसलिए कि वो ठीक हो जाएं जल्दी। या तो रियली थैंक्स फॉर यू मैम, आप हमेशा अपना टाइम देते हैं कीमती, और कहीं ना कहीं हमें फ्रूटफुल वैल्यूबल जो सेशंस है कवर करवाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे ऑडियंस है उनको बेनिफिट मिलता है, और वो उनको अवेयरनेस मिलती है कि हमें जो इशू है हम कैसे रिजोल्व करा सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे आएंगे जो अपनी क्वारीज लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टर सुंबुल के पास, डॉक्टर सैफ के पास, और जो भी आपके इशूज़ हैं होपफुली वो रिजोल्व होंगे। तो आपका टाइम देने के लिए रियली थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच सुमित फॉर हैविंग मी ओवर हियर। थैंक यू। इट्स अवर प्लेजर मैम, एंड थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।